آج آپ 17واں پارہ سن رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک حصہ 16ویں پارے کا اور پھر 17واں انشاءاللہ سنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے کہ وہ پردہ کر کے ایک طرف عبادت کے لیے رہتی تھی، تو ہم نے اپنی طرف سے حضرت جبریل کو بھیجا جو انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں تیری شر سے، اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ غلام عطا کروں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھلا مجھے کیسے میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں۔ فرمانے لگے اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھ پر یہ بہت آسان ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر ان کو حمل ٹھہر گیا اور وہ پھر شرم کے مارے دور جگہ پر ایک طرف چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر ولادت کی تکلیف انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اور پھر اس موقع پر فرشتے نے آواز دی کہ تو غم نہ کر، تیرے نیچے اللہ نے، تیرے رب نے ایک چشمہ بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اب دیکھیں، تنے کو ہلانے سے کھجوریں تھوڑی گرتی ہیں۔ اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو اور کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر۔ ہاں، اگر کوئی انسان تو دیکھے تو اسے کہے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر وہ اس چھوٹے بچے کو لے کر قوم کی طرف آئی، قوم نے باتیں بنائیں کہ تجھے کیا، تو نے، تیرا والد بھی نیک آدمی تھا اور تیری ماں بھی کوئی بری نہیں تھی۔ تو انہوں نے، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بالکل چھوٹا گود میں بچہ ہے۔ تو وہ بچہ بول کر بتانے لگا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے، نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جس کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا اور پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ان سب کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس دن ہم متقین کو بطور مہمان اکٹھا کریں گے، متقین کو، اور مجرموں کو ہانک کر پیاسا جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اور یہ لوگ کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور کہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، اور یہ بہت بھاری چیز ہے، بھاری بات ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اس بات سے کہ اس کے لائق نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، ہر ایک اس کا غلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور پھر سورہ طٰہٰ میں پھر حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر فرمایا، فرعون سے مقابلے کا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد
बयान फरमाया कि इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन, जो अपने रब के सामने मुजरिम बनकर आएगा, हाँ जी, फ़इन्न लहू जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम है, न उसमें मरेगा न जिएगा। और जो मोमिन बनकर आएगा तो और नेक अमल किए होंगे उनके लिए बुलंद दराजात हैं, हमेशा के बागात हैं, और ये बहुत अच्छा आला बदला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है तो उसकी ज़िंदगी मैं तंग कर देता हूँ, उसकी ज़िंदगी में तंगी आ जाती है, और क़यामत के दिन हम उसे नबीना करके उठाएंगे। वो कहेगा कि लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब तूने मुझे नबीना करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। कहा जाएगा तेरे पास हमारी आयतें आई थीं, तूने उन्हें भुला दिया था, आज तू भी इसी तरह भूल जाएगा, भुला दिया जाएगा। फिर आगे 17वां पारा शुरू होता है कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया और वो अभी गफलत में पड़े मुंह मोड़े हुए हैं। फरमाया कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाली थीं, और हमने उनको हलाक करके उनकी जगह और लोग ले आए। और जब इन्होंने हमारा अजाब महसूस किया कि अब आ रहा है, भागने लगे। हमने कहा ला तरकुज़ू, भागते कहाँ हो, वापस लौटो उसी आसूदगी के माहौल में और अपने घरों में, अभी तो तुमसे पूछा जाना है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हम दुनिया में कभी बुराई और कभी भलाई देकर आजमाते हैं, और याद रखो तुमने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और ज़िक्र फरमाया ख़ुसूसी तौर पर, और फिर हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के हवाले से एक वाक़या, एक फ़ैसले का ज़िक्र हुआ कि जिसमें हज़रत दाऊद, एक शख्स की बकरियां दूसरे शख्स के खेत को उजाड़ गईं, तो हज़रत दाऊद ने फ़ैसला किया कि बकरियां उसके हवाले कर दो, लेकिन हज़रत सुलेमान ने कहा कि नहीं, बकरियां उसके पास आर्जी तौर पर रहेंगी, जो उसका इस्तेमाल करेगा, यानी उनका दूध पिएगा, और ये जो शख्स है बकरियों वाला, ये जिस तरह की खेती थी उसकी खेती तैयार करके देगा तो ये बकरियां वापस ले लेगा। ये फैसला अल्लाह फरमाता है, हमने सुलेमान को समझाया। और फिर इसके बाद अल्लाह ने 3 अंबिया का जिक्र फरमाया कि जिनको अपनी तकलीफ़ में जिन्होंने अल्लाह को पुकारा। हज़रत अय्यूब ने कि मैं, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू व कशफना मा बिही मिन दुर, हमने उसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया। फिर उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जब वो गए और हमने उसको मछली के पेड़ में डाल दिया तो वो अंधेरों में से उन्होंने आवाज़ लगाई, रात का अंधेरा, फिर समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरों में से आवाज़ लगाई कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही गलतकार हूँ। फस्तजबना लहू, तो फिर हमने उसकी दुआ को कबूल किया और हमने उसे इस गम से दूर किया, उसका गम दूर किया। और फरमाया कि फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें याहिया अता किया। फिर इसके बाद सूरह हज है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लोगों अल्लाह से, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली औरत अपना हमल परेशानी में गिरा देगी, और आप देखेंगे लोगों को कि वो मदहोशी के आलम में हैं, लेकिन वो मदहोश नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा कि जिस वजह से लग रहा होगा कि वो मदहोशी में हैं। बेशक वो लोग जो काफिर हैं उनको आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाएगा, जो कुछ उनके पेटों के अंदर और उनके चमड़े हैं वो गला दिया जाएगा, और फिर वो निकलना चाहेंगे तो वहाँ चाहेंगे वो निकलें, लेकिन
उईदू फीहा, दोबारा धकेल कर उन्हें वापस कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कहाँ जाते हो, ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़, आग का अज़ाब अब चखो। और अल्लाह फरमाता है कि जब तुम जानवर ज़िबा करते हो अल्लाह की राह में, ना उनके गोश्त तुम्हें अल्लाह को पहुँचते हैं और ना ही उनके खून अल्लाह को पहुँचते हैं। अगर पहुँचता है तो तुम्हारे दिल की कैफियत, तुम्हारा तकवा पहुँचता है। यानी अपने दिल को ठीक करके ये नेकियां किया करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कितनी ही बस्तियां हैं कि जिनको हमने हलाक कर दिया कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाली थीं और वो बस्तियां गिरी हुई थीं और कुएं वीरान थे और मजबूत महल भी वीरान थे, कोई उन्हें रहने वाला नहीं था। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि अपने दिलों से कुछ समझते और कानों से कुछ सुनते, और लेकिन सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। यानी ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। और आखिरी सफ़े पर अल्लाह तबारक व तआला ये सूरा ये हज है और फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो। बेशक वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, ये कभी एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अगरचे ये सब इकट्ठे भी हो जाएं, मक्खी तो पैदा करना दरकिनार, अगर मक्खी इनके खाने से कोई जर्रा छीन के ले जाए, ला यस्तनकिज़ू, ये उसे भी नहीं छुड़ा सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर मांग रहा है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर कि वो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। मक्खी अगर कोई खाने का जर्रा छीन के ले जाए तो वो भी नहीं छुड़ा सकता, तो वो भी कमज़ोर। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।